music, and he is a guitarist too. He has participated in many outfests in Kashi Yatra, and many a times he got lucky too. So, Mr. Prakhar Kamal sir, are you here? Hi Anushka, hi everyone. Yeah, that's true. And now our next guest is Mr. Divyajyoti De. Uh, Mr. Divyajyoti De has got, I'm sorry, I forgot one thing about Prakhar Kamal sir. He got an intern at 8fold.ai. Now our next guest is Mr. Divyajyoti De. He is from metallurgical engineering, and he got his internship at AgriLinks Data Technologies. Uh, he is a part of Share from 2019 to 21. He is a member of Business Club, and in and he has been runner up in Technex 20 in Industrial Enigma. Oh, hello, Divya Jyoti Desai. Are you here? Hi, yeah, hi everyone. Our our next guest is Miss Palak Chaturvedi. Um, she's from biomedical engineering. She got her intern at Publicis Sapient. Uh, sh- she's a Hull Prize campus winner in 2018, and then top six in Hull Prize regionals Kuala Lumpur 2019. Hello, ma'am. Hi, hello everyone. And our next guest is Mr. Harsh B. Parmar. He is having some network issues, so he will join us in a while. So let's wait for him. So now our guest, Mr. Harshvi Parmar, is here. Welcome, sir. Hello.
I guess he's having some network issue. Mm. Hello, Harsh sir. हेलो 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 सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था अभी तक Yeah, it's okay. It's okay. So, Mr. Harshdeep Parmar sir is from CAC. He's passionate everything about that is data. He is a squash captain and he's also a Codfest convener one time, and he has went in 2 times in inter-IIT squash teams. He got an intern at Red Kenko Health Tech as a data scientist. So everyone, I would like to introduce you to Mr. Harshdeep Parmar. Okay. So now let's begin the session. So today's session will be held in 2 sections. The first section, I will be asking questions and answer can I regarding interrupt you some. for a second Yeah, sure. if everyone's okay like Palak Divyajyoti and Prakhar we are okay then we can turn on our cameras because I Yeah, think sure. we That do will want be to see our great. faces right Yeah, there's some network issues here, so I won't be able to turn on my camera. But yeah, you guys can go ahead. प्रखर भी आपको तो चलाना पड़ेगा ऐसे थोड़ी And Mr. Divyajyoti sir. परमार तो भी कहाँ है? क्या मैं तो भाई बनारस में ही हूँ वही सोच रहा था. मैं बीच बीच में कैमरा ऑफ करूंगा 1-2 सेकंड के लिए फिर लेना Divyajyoti sir, will you please turn on your camera? Okay, thank you. So now let's begin the session. So today's section will be in 2 sessions. The first will be some common question and answer regarding internship in data science, and the second session will be a doubt session where if anyone wants to ask some question, they can type it in chat box anytime they want. So let's begin. So first of all, I will like to ask, can you please give us the basic idea what is the 1 second, I don't think there's a chat box in this call. it should be there. There isn't, so probably they can switch on the mic and ask it. Text box is not accessible to guests. Okay. अरे chill है, they can So switch on their mic and ask. Turn on your mic and ask it. yeah, they can interrupt. Like it will be better if they will ask their questions in the end of the session. Otherwise, there will be a lot of interruption. Or anyway, you are comfortable. हाँ, last They में can, Q&A रखते हैं. they We'll can keep the probably raise their Q&A hands at the and end. Okay. So now my first question is like let's talk about someone as an absolute beginner. So how can you describe the basic idea of data science for someone like this? so yeah let me answer it if nobody is taking the so data science is as the name suggests it's like weaving a story out of data Yeah. you that's the simplest definition that I have ever heard of data science to put it another way you can say you explore the science of data as in when you do an experiment there's a result a logical conclusion that comes out of it right so you perform science on data and uh, come towards conclusions that are useful for whatever business you're working with so I hope that answers everybody's question. Yes, that does. So Okay. let me add on to what Harsh said. So basically, data science is a big bracket under which you can have data analysis, and you can so basically you can do anything and everything with data. मतलब तुम्हारे पास this data है, and you can
do everything with it. You can make conclusions, you can do experiments, find results, and so everything comes under the the umbrella of data science, machine learning, artificial intelligence, NLP. ये सबने नाम सुना होगा ये सबका. So all of that Like comes under the umbrella of data science. machine learning and AI excites everyone, I think. So like Yeah, abhi everyone, it's in the thing. like it gives everyone a thing like butterflies in the stomach, let's say. So my question is, how is data science is required for AI or ML? Like how they are related or something? Data science is actually AI and ML is a part of data science if you consider Like like data and science is the bigger umbrella. yeah. So when companies also will come to hire, mostly they'll come with a role of data scientist. Now, a data scientist can be of different types. Like a data scientist can have roles of being a data engineer. Data engineer basically gathers data and puts it into pipelines for later use and processes. Again, there could be a data analyst who takes out insights from the data, and then there's machine learning engineers who would probably use that data and put it through models to gain much better outcomes that are not possible through just exploratory data analysis. So even like before being a good data scientist, I believe you have to understand product and what is the purpose you are applying that model, or what is the purpose you are wanting to get out of the data. Like if you collect some data, you have to understand that from where this data has come and what is the purpose of this data and what can I do with this before you even trying to analyze that. Okay. So now talking about this, like I would like you to share how data science can be adopted as in fulfilling job for future. Like, is this a profession to whom we can give our 24 hours, our lifetime? Can you come again with the So I think I'd question? like to answer that. Yeah, एक Uh, yeah, सेकंड वो क्वेश्चन so सुन लो फिर से. अच्छा बोल. हाँ, Yeah, please repeat the क्वेश्चन question. बता दो ना फिर yeah. से. I will. Like my question is, like to enlighten us how data science can be adopted as a fulfilling profession. Like, is this something to which we should give our lifetime? हाँ, ये तो मैं देखो नहीं यार, बता सकता. देखो, uh, this is not like something कि तुमको, you know, it's just that कि if you like playing with data, if you like, you know, gaining insights and telling story with data and making predictions with data, like what Divyajyoti said कि मतलब बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस डेटा साइंस. तो लाइक उसके अंडर तुम अलग अलग किसी भी फील्ड में जा सकते हो. लाइक डेटा एनालिसिस पूरा एक पाइपलाइन होता है, ठीक है. लाइक एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट का पाइपलाइन इज समथिंग लाइक डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, ठीक है. उसके बाद उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा यू हैव टू मेक सर्टेन प्रेडिक्शंस, ठीक है. लाइक कि मतलब तुमको कुछ लाइक सपोज देयर इज अ डेटा सेट एंड इट इज अ डेटा ऑफ सम, लेट्स से सम पेशेंट्स, ठीक है. उनके सारे तुम्हारे पास स्टार्ट्स हैं कि लाइक किसका ब्लड प्रेशर क्या है, किसका मतलब अलग अलग तरीके के स्टार्ट्स, एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू प्रेडिक्ट कि इनका लाइक क्या इनको कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं एंड ऑल. तो ये सब के लिए यू नीड टू प्रिपेयर डेटा अकॉर्डिंगली. तो मतलब ये पूरा पाइपलाइन होता है. अब इस पाइपलाइन में लाइक अलग अलग जॉब टाइटल्स होते हैं. जैसे जो बंदा डेटा कलेक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन वाली चीजें ज्यादा करता है, दैट विल कम अंडर डेटा इंजीनियरिंग थिंग, ठीक है. जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वाला बंदा होता है उसको हम डेटा एनालिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है. जो प्रेडिक्शन वाली चीजें करता है उसको हम मशीन लर्निंग इंजीनियर के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो इट वर्क्स लाइक दैट. और रही बात हाउ फुलफिलिंग द जॉब इज, that totally depends on your interest. Ki if you like playing with large amount of data,
तो मतलब you'll definitely like it. Okay, okay. Yeah. So like as you were mentioning, and like and another thing is that data science सारे फील्ड्स में काम आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस Yeah. जो CS पढ़ रहे हैं वो कर लेंगे, मतलब वो लिटरली तो सिविल देखेगी, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, बायोकेमिकल, एंड EPIC, सब में कोई भी ब्रांच हो, सब में डेटा साइंस की जरूरत होती है, द डेटा इज like एवरीवेयर. yeah, like as you said, हर जगह जरूरत होती है data science की. So what are the opportunities like in which one can grab them? Like in CSE it is required, but how? Like what if someone wants to do it as its यार profession? देखो, for being a good data scientist, firstly you need to be good with maths. ठीक है, अगर maths नहीं पसंद है तो data science में मत जाओ, Like क्योंकि data like science every मतलब it's all about statistics. okay, like it अटक is गई यार, फिर से बोलना. और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार, मतलब इट्स ओके. मतलब मैथ्स it is इज like इंटरेस्टिंग that है. is calculus, like something like calculus like maths or नहीं, आप statistics type maths. इंटीग्रेशन करने को नहीं देंगे तुमको यार. But मतलब it's just that एक, नहीं, वो जो एक, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गई बस. या okay, एग्जैक्टली okay, जो एक okay. बेसिक जनरल इंट्यूशन होता है ना, मैथमेटिकल इंट्यूशन, वो होना चाहिए तुमको. Like more like Again, being an applied data scientist and a researching data scientist is a completely different thing, right? okay, Yeah. Researching data scientist would be more involved into the mathematical folds of the thing and bringing out new models. And abhi to, like, I don't know if people already know about neural networks or stuff like that, but applied data scientists would probably use neural network frameworks that are already existing and probably Yeah. manipulate it to some extent, reduce some neurons or put regularizations on that. But researching data scientist would try to bring out more neural network architectures. So he would be more involved in the mathematical form of it, finding backpropagation methods which are better suited for the purpose. So both are different. So you probably someone who is not pursuing a degree of say mathematical sciences or computer science, it's pretty difficult for them to directly go into a researching data scientist profession, I feel so. But for all branches, getting into applied data scientist position is kind of more easier because it wouldn't require that much of maths. okay, okay. Arnab has a question. Hi Bhaiya, Yeah. Raise his hand. I am Arnav from part 3. This might seem to be a far-fetched question, but I want to ask that how do you see the emerging technologies in data science like CUDA programming and NVIDIA Rapids, and if pursuing data scientist, like हम अगर इंटर्न में जाएंगे और हमने अगर ये सब टेक्नोलॉजी सीख रखी होंगी तो कितना एडवांटेज रहेगा या नई टेक्नोलॉजीज के साथ. यार जो टेक्नोलॉजीज वाली चीज तू बोल रहा है ना भाई, that is absolutely specific to the company you are joining in. मतलब हर फर्म अलग चीजें यूज करता है, अलग टेक्नोलॉजीज पर काम करता है. जैसे रही बात अगर किसी कंपनी के कोड बेस की बात कर लो, तो किसी का कोड बेस पाइथन में मिलेगा, किसी का जावा में मिलेगा, तो इट इज नॉट लिमिटेड. तभी तो कहते हैं ना, लाइक बंदा कोई किसी जॉब से स्विच क्यों मारता है, क्योंकि वो रेपिटेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो दूसरे फर्म में जाता है, नई टेक्नोलॉजी सीखता है. समझ रहे हो? ओके भैया. तो भी भैया बेयर मिनिमम, यानी कि फिर वो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी होगी जिससे हम जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी कर सके, या फिर वो इंटर्नशिप वाला हमें प्रेफरेंस दे. Well, the easiest and safest thing for data science is Python. Like, मतलब कुछ कंपनीज ऐसे भी होगी कि वो सिर्फ पाइथन ही मांगेगी तुमसे. And probably because Python is a मतलब easier language to probably write so much code in, and it's more human readable than the other languages. But मतलब Python के supporting libraries थोड़े ज़्यादा है. And I would say कि like if you're मतलब looking at data science
from just a job point of view, Python is the safest language to learn, and you should probably slowly get into a habit of plenty of firms I think use TensorFlow, and TensorFlow is pretty common these days. और रही बात मतलब that is based on तुम कितना ग्रो किए हो तब तक फर्म्स मतलब जब तुम्हें इंटर्न के लिए आएगी तब दे वुड प्रोबेबली जस्ट सी व्हाट्स योर एप्टीट्यूड एंड मतलब तुम में कितना कैपेबिलिटी है डेटा को इंटरप्रेट करने की और समझने की कि कौन सी मॉडल कौन सा कब यूज़ करना है, कब क्लासिफिकेशन यूज़ करना है और कब रिग्रेशन यूज़ करना है. दैट इज़ थिंग which is first steps into data science. So probably Parmar would be able to add on to it more because Yeah, I CS was, के लिए थोड़े yeah, I ज़्यादा was companies looking to add more onto this. So the thing is, look, when you go for your internship or even job interviews, the companies don't expect you to know the technologies that they are working on. Okay, or रही बात advantage की, तो there's definitely an advantage, but that's not a huge advantage because what companies look in a candidate is if he knows the basics, if the guy understands what basically the field that he wants to work in is about. Okay, because when you are sitting for an internship interview, you are probably third year in the third or fourth year of your college. Okay, so for them you are a fresher, you're a complete noob. They just want you to understand the basics of everything, machine learning and Python programming वगैरह, whatever their requirement is. Okay, if you know the basics well, तो बस you are there, you'll make it through easily, कोई issue नहीं होगा. I think अच्छा, Prakhar and I'd like getting to add about one more thing. this, yeah. मतलब इसमें एक फिल्टर मेरे को ऐड करना है कि लाइक देखो जैसे कुछ लोग का होता है दे वांट टू डेटा साइंस रोल्स एंड डेटा एनालिस्ट रोल्स, ठीक है, तो उनके लिए आई वुड से कि वो मतलब पाइथन से ही स्टार्ट करें. बट आई नो पीपल हु यू नो लाइक एम फॉर एसडी रोल्स एज वेल एज डेटा साइंस रोल्स. तो यार एसडी रोल्स के लिए आई थिंक सी प्लस प्लस भी आना चाहिए बिकॉज कुछ कंपनीज आती हैं जो पाइथन अलाउ ही नहीं करती. सिस्को आती है वो केवल सी अलाउ करती है. ऐसा तो सीन होता मतलब है. दैट इज फॉर एसडी है ना, मतलब मैंने अभी तक कोई कंपनी नहीं देखी है, मतलब मैंने नहीं देखे कि लाइक फॉर डेटा साइंस दे आर नॉट एक्सेप्टिंग पाइथन. नहीं, मैं केवल डेटा साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ. लाइक अब हाँ अकेला हाँ डेटा साइंस नहीं फोकस कर सकता ना कोई बंदा, क्योंकि अपना कंपनी कम आती है उसकी. ऑब्वियसली बहुत ही मतलब या इफ यू आर फ्रॉम नॉन सर्किटल देन लाइक इंटर्न में तो डेटा साइंस की कंपनीज बहुत कम आएगी. लाइक फर्स्ट मेजर मतलब फर्स्ट मेजर कंपनी दैट यू विल हैव इज पब्लिसिस. पब्लिसिस और माइक्रोसॉफ्ट का अप्लाइड रोल आता माइक्रोसॉफ्ट भी लाइक नॉन माइक्रोसॉफ्ट का अप्लाइड है जो हमारे लिए नहीं होता, सर्किटल नॉन के लिए करती है. सर्किट नहीं होता है. पब्लिसिस डेटा साइंस ही प्रोबेबली से हाँ एग्जैक्टली. और अमेजॉन भी एआई आती है, या क्वांट भी होती है. अमेजॉन भी आती है ना, वैसे आईडीडी को बैठने देती है. नहीं खुलती. हाँ So हाँ, और वो next, खुलती है सिर्फ सीएससी एमएनसी के लिए आई थिंक. हाँ. प्रोबेबली एक एक्सा विजार्ड्स एलएलपी कुछ थी जो आई थी. That also like their test had CP round. Yeah. Also Publicis का first round, it's not CP but basically थोड़ा probably Palak would remember better, but there was some quant and some basically क्वांट का मॉडल your सिर्फ aptitude in बेसिकली Python दो was पाइथन there were 2 Python questions and बाकी ML पे questions थे, quant नहीं था. ML पे questions थे basic, मतलब you know like recall precision पे and R1 score वगैरह. बाकी 2 Python question थे, एक normal Python का था और एक modeling पे था. मतलब we had to impute the missing values in a time series data. एक So it was like pretty simple. अगर हाँ. मतलब हाँ मतलब अगर बेसिक पाइथन आती है और लाइब्रेरीज किए हुए हैं 1-2 प्रोजेक्ट्स तो हो जाता है. मतलब that question could have been solved without using libraries also. हाँ Few. हाँ पर हाँ दीदी पर एक since normally you just mentioned it, function का question. हाँ ask. since you So since mentioned it,
Palak आई वुड mentioned लाइक टू आस्क कि मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से करें? जैसे कैगल से तो मतलब कितने सारे मिल जाते हैं, बट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक एज रखता हो कि ये सीवी में अलग से दिखे या इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, इस तरह का प्रोजेक्ट या गुड डेफिनेशन कैसे मतलब ढूंढे? लाइक एक बात है कि कोर्सेरा के प्रोजेक्ट्स और कैगल के जैसे हाउस प्रिडिक्शन और ये सब जो बेसिक प्रोजेक्ट्स है ना, वो मत ही डालना। मतलब वो एकदम यूजलेस होते हैं, सबको पता है कि ये एकदम बेसिक्स है एंड इट्स ऑल गाइडेड प्रोजेक्ट्स। तो टेक समथिंग, सो कैगल पे सही बहुत प्यारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। टेक समथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड विच कवर्स लॉट ऑफ एरिया। जैसे प्रखर ने बोला था ना कि पहले डेटा एनालिसिस होता है, फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा होता है, फिर यू हैव टू गेट इनटू द मॉडलिंग, देन विजुअलाइजेशन। सो मतलब डेटा साइंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो यू कैन टेक 2-3 प्रोजेक्ट्स जो स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस कर रहा हो। मे बी अ प्रोजेक्ट, one project which focuses on exploratory data analysis, another project which focuses on data visualization. तो अगर 2-3 वैरायटी में रहे तो दैट्स एडवांटेजेस, बिकॉज देन द सीवी में ऐसे दिखता है ना कि यू हैव गुड आइडिया अबाउट ऑल फील्ड्स। और दीदी अगर मॉडल डिप्लॉयमेंट कर का भी जैसे हीरोको और एज़्योर AWS पे करवा देते तो उसमें कोई एडवांटेज रहता है कि मतलब ये नहीं, प्रोजेक्ट को वैसे डिप्लॉय भी दे आर किया? नॉट लुकिंग फॉर डिप्लॉयमेंट मच ऑफ डिप्लॉयमेंट इज बहुत दूर की बात। मतलब हमें भी इंटर्नशिप के एंड लास्ट के 2 वीक में डिप्लॉयमेंट करवाया था और हमने उसी टाइम सीखा था। तो दे डोंट लुक फॉर डिप्लॉयमेंट एज सच। वो बेसिक्स चाहिए। मतलब कि अगर तुम्हें एक केस स्टडी दी और तुमसे पूछा कि तुम कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे, तुम क्या प्रोसेस होगा कि तुम सोल्यूशन पे आ सको, बस। दे आर नॉट गोना लाइक गो डीप इनटू टेक्निकलिटीज और एनीथिंग लाइक दैट। ओके जी, थैंक यू। ऑन दैट नोट भाई डेटा इंटरव्यूअर क्लीनिंग ये नहीं इज अ देखता है कि तुमको कितना आता है, वो ये देख रहा है कि तुम कितना सीख सकते हो। हाँ, मतलब what I was saying कि on that note data cleaning is a skill that's like not मतलब not looked upon by us when probably preparing for data science roles, but it's really looked upon by recruiters. They'll even ask you that how messy was your data and what did you do to clean it. मतलब उनके लिए बहुत kind of also important how है did you क्योंकि collect it, कैसे कहाँ से मिला था डेटा? दे प्रेफर मतलब वो मानते हैं कि तुमको अच्छा खासा आता है अगर तुमने स्क्रैपिंग से डेटा कहीं से निकाला हो एक आध प्रोजेक्ट में। हाँ, बिकॉज रियल लाइफ डेटा इज नॉट लाइक मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। रियल लाइफ डेटा में यू हैव टू लाइक गेट डर्टी विद इट एंड टेक आउट आउटलाइनर्स और बहुत कुछ होता है। तो डेटा क्लीनिंग इज अ स्किल विच इफ यू आर गुड एट इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन टू द इंटरव्यू। Yeah. So talking about projects, like second year के end में we all do a project like in fourth semester. So is it matters that that project is from the data science field, or we can opt for any other type of project? Like what impression it will make on the interviewer? What प्रोजेक्ट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो Like कॉलेज में जो She's क्लासेस talking में about बीटीपी वगैरह होता exploratory I है। think project. Explore. एक्सप्लोर की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक्सप्लो मतलब यार एक्सप्लो चिल होता है, वो तुम कुछ भी कर लो एज लॉन्ग एज इफ यू हैव अदर प्रोजेक्ट्स इन डेटा साइंस। मतलब मेरा एक्सप्लो एकदम कोर में किया था मैंने, बट okay, in my CV I kind of like twisted it into a data science format कि उसमें data science घुसा दिया कैसे भी करके तो वो like चलता as है। it मतलब तुम matters not that there should be some Obviously, if you're project. applying for a data science position, the guy or the interview would be asking you data science projects only. You will not be asking you web development projects. Similarly, मतलब तुम अगर explore code में करोगे, in which case your code is not related to data science, तो obviously that doesn't मतलब hold any importance, right, to him. It wouldn't give any bad impressions and not any good impressions also at the same time. Whereas there are some profs in every department which would probably let you take up projects that you have applications of ML or probably ML only, मतलब ML in your coursework only. Like CS से भी ज़्यादा बाकी streams में ML बहुत ज़्यादा use होता है research में. From simple things like predicting temperatures of certain reactions to temperatures of certain मतलब कौन से temperature पे तुम्हें कुछ करना है, और to civil में भी बहुत use होता है like
उनका एक होता है सेफ्टी इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन इज अ मतलब प्रोजेक्ट विच इज़ कॉमन एंड येट मतलब बहुत दिन से रन कर रहा है अभी। तो इफ़ यू कैन मतलब यू कैन probably ask your prof or guide or whoever it would be for Explore to probably give you a project that has applications of ML in it. Probably you could write that. So now having the basic knowledge about this field, I would like to know like how someone can start studying in this field, from where, how, like what are the sources you would recommend? Yeah, And please एक बार question repeat करो, समझ नहीं आया, आवाज कट गई थी. Like I am asking about from where to study about how to being a data scientist, what to study, like what courses would you suggest from Coursera, Udemy, or any such app? the simple answer anyone would tell you is to start with Andhra NG courses. Anyone. भाई सबसे पहले तो anyone, पाइथन आनी चाहिए. या लाइक अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो पाइथन में, ठीक है. मैं क्या करता था, मैं और हर्ष हम दोनों साथ में हमने स्टार्ट किया था. लाइक वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर एंड हमने क्या किया था, हमने एक कोर्सेरा से एक कोर्स उठाया था जिस हमने पाइथन पढ़ना स्टार्ट की. लाइक एब्सोल्यूट बिगिनर, हमने पाइथन में एक कोड नहीं लिखा था अभी तक इसके पहले, ठीक है. लाइक एंड दिस इज इन जुलाई 2020, ठीक है. Which is really shameful on my part क्योंकि मैं CSC से हूँ और मैं थर्ड ईयर के स्टार्ट पे कुछ नहीं आता, कोडिंग बिल्कुल नहीं आता. तो हमने पाइथन स्टार्ट करी. उसके बाद पाइथन में हमने थोड़ा बहुत डीएस एल्गो के क्वेश्चंस थोड़े बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व करे, जिससे कि लाइक हमें ना कोई बताने वाला ये चीज नहीं था कि तुमको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए डीएस एल्गो करना है कि नहीं करना है. बिकॉज उस टाइम पे हमारे दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि जो टेस्ट होते हैं इंटर्नशिप वाले डेटा साइंस के लिए, उसमें डीएस एल्गो आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, ये हमको पता ही नहीं था, तो हमने सोचा कर लेते हैं, नुकसान थोड़ी होगा. एग्जैक्टली भाई, ऑन कैंपस इंटर्न भी तो लगनी चाहिए ना. ठीक है. हाँ, प्लेसमेंट में एक दो कंपनीज पूछती है. हाँ, तो हमने सोचा कि कर लेते हैं डीएसएल को. तो हमने एक लाइक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लिया जीएफजी से, गीक्स और गीक्स से, ठीक है. उसके बाद हमने सोचा कि अब ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स मशीन लर्निंग. उसके बाद हमने धीरे धीरे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स करना चालू करे. जब हमें देखा उसमें कि बहुत ज्यादा मैथ्स आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, हमने एक छोटा सा ना माइनर कोर्स जो है ये क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स का भी कर लिया. बिकॉज इट इज यूजफुल, मतलब कोई लॉस नहीं है उसमें तुम्हारा, क्योंकि many of you might be having that course. वो MA कौन सा होता है यार, वो probability and statistics वाला. हाँ, वो जो भी होता है, मेरा वो था नहीं. मेरा था, फायदा नहीं हुआ. अरे वो कोर्स पता नहीं क्यों मतलब अपने डिपार्टमेंट में ही नहीं है, पर इट्स अ रियली गुड कोर्स. भाई कोई फायदा भी नहीं है भाई करना क्यों कोर्स. तो वो हो गया. उसके बाद वी स्टार्टेड ऑन लाइक यू नो थोड़ा सा रियल वर्ल्ड फ्लेवर लेने के लिए वी स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, एकदम बेसिक वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स. मतलब KNN हो गया तुम्हारा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, ये सब एकदम बेसिक प्रोजेक्ट्स उठाए. उसके बाद बस जब इस लेवल पे तुम पहुंच जाओगे ना, तो तुमको अपने आप ही सब साफ दिखने लगेगा कि तुमको क्या करना है, NLP करना है, OpenCV करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. So the first step is to start with Python, like coding skills acquire करो. Okay, so coding is important. बहुत important है. ऐसा है ना, मैंने सेकंड ईयर में सोच रखा था कुछ भी हो जाए कोडिंग तो नहीं करूंगा, बट एंड में वही करा. मैंने भी also ये सोर्स वाला जो क्वेश्चन है, that's not मतलब सोर्स भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. मतलब मेरे को और कमल भैया को सोर्सेज बहुत मिलते थे, पर हम खुद बैठ के अपना ढूंढते थे कि नहीं हमें इसमें से सही से समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये वाला समझ आ रहा है तो ये वाला देखते हैं. और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम दोनों अलग अलग जगह से पढ़ के आ रहे हैं एक ही टॉपिक और फिर समझा रहे हैं कि तो you have to get your hands dirty, you have to scavenge for resources. मेहनत करनी पड़ेगी. इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. तुम अगर सोच रहे हो कि तुमको एक जगह लिखा मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा. But on an honest note, if you've like coded in a different language, Python isn't
like that hard to catch on to. Probably सबने ही CSO 101 किया होगा. हाँ, So that is it. मतलब उसका मतलब ये थोड़ी है कि Python प्रोग्रामिंग आ जाएगी, वो तो हमने भी किया था। अपने हाँ, तो बेसिकली And पाइथन में and डिफरेंस जो आते हैं considerable fact है कि यहाँ पे ऑनलाइन सेम में किया है लोगों ने। अरे हाँ, वो भी है। हम तो कॉलेज पहुंच गए थे, फिर तो बस पढ़ाई छोड़ दी की। तो बेसिकली पाइथन में द डिफरेंस इज कि तुमको सेमीकोलन्स नहीं लगाने पड़ते, और वहाँ पे जैसे यू यूज़ कर्ली ब्रेसेस फॉर डिनोटिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड, यहाँ पे इंडेंटेशन उसका काम करता है। और फॉर लूप थोड़ा अलग से लिखते हो यहाँ पे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज हो या बाकी उसको छोड़ के देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस। और हाँ, मतलब एक्सप्लिसिटली you don't have to specify variable types. These are the difference. So once you are like comfortable in writing normal Python code with loops and everything, first learn pandas and numpy. Okay. So first learn Python language, then learn pandas and numpy. Then if you can, learn matplotlib or matlab, any one of them which you feel easy. Matplotlib would be better because अगर तुम Python में ही कर रहे हो तो पूरा चीज़ Python मॉड्यूल में ही रहेगा। Matplotlib बहुत काम में आता है तुम्हारे एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स, मतलब एक्सप्लोरेशन में लगता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे, इनिशियली एक्सप्लोरेशन में तुम्हें ग्राफ्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो then you start learning machine learning algorithms. You can learn machine learning algorithms from either the course by Andrew Ng, और एक मैंने जो किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक स्पेशलाइजेशन है, उसमें लाइक इट्स प्रॉब्ली इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, समथिंग लाइक दिस। तो उसमें पहले they'll teach you, एक कोर्स में पांडास एंड नंपाई पढ़ेंगे, नेक्स्ट में मैटप्लॉटलिब वाला, मैंने मैटप्लॉटलिब वाला थोड़ा करके स्किप कर दिया था, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। एंड देन देयर इज इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इन पाइथन, एक कोर्स है उसका। देयर एटलीस्ट यू विल बी रेडी रनिंग विद एप्लीकेशन बेस्ड एमएल ऑफ अप्लाइड एमएल। तुम्हें बहुत उसमें सीखने को मिल जाएगा। लाइक दे विल स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन KNN से शुरू करके, लाइक दे विल टीच ऑल द रिग्रेशन स्टफ्स एंड ensembles तक तुम्हें एक आइडिया दे देंगे। तो that is like you can use to get the flavor of ML। मतलब उसमें उसके असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे होते थे। तुम्हें फ्लेवर मिल जाएगा एटलीस्ट ML का। देन डीप लर्निंग के लिए तो ऑब्वियसली एंड्रू एनजी का डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन से मुझे उससे अच्छा कोर्स अभी तक मिला नहीं है। इफ किसी को पता हो तो बता सकता है। Okay. And for those who are like absolute beginners, जिनको पाइथन बिल्कुल नहीं आती, अभी तक कुछ नहीं करा है, तो like जरूरी नहीं है तुम कोई कोर्स खरीदो ही यूडेमी पे या फिर कुछ करो। भाई यूट्यूब पे ना एक बंदा है, उसका चैनल का नाम है कोड विद हैरी, ठीक है? तो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है एंड टू एंड, मतलब 150 वीडियोस है करीब उसमें। छोटे छोटे हैं, बड़े वीडियोस नहीं है उसमें। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, बेसिक प्रोजेक्ट्स, जिससे तुमको पाइथन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो वो बंदा काफी अच्छे से पढ़ाता है। मैंने और हर्ष ने भी उससे काफी पढ़ा है, और मतलब इट वाज क्वाइट हेल्पफुल। अच्छा, one thing I wanted to ask Palak also कि did in your publicist interview did the guy ask you deep learning? Is she here? Let me check. He's here. Palak, your voice is coming a bit. कुछ बोल तो रही है, आवाज नहीं आ रही, बट Actually. एक बार rejoin करके देख सकते हो। मतलब the main point was during my interview with publicist, basically like मुझे जितना लगा था कि one of the drawbacks which I had was मैंने तब तक deep learning नहीं करी थी, and the interviewer had asked me specifically कि are you familiar with deep learning? So I told him that I know the basic concept, but I've never done stuff in that. But there was another guy, Akash, who was selected by publicist, so
he had done deep learning, and most of his interview he was asked deep learning stuffs like what is atom optimizer and what is drop मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर मोस्टली उसको डीप लर्निंग स्टफ पूछा था, CNN तक भी पूछा था. तो मतलब आई वांटेड टू क्लैरिफाई विद पलक ऑल्सो, if पलक was also asked, मतलब क्या वो एक फैक्टर है दे आर लुकिंग फॉर व्हाइल हायरिंग. Hello, Palak ma'am. Hello. Yes, you are audible now. Am I? Okay. तो मैं बोल रही थी for the previous question जो भी there are two other YouTube videos मतलब channels. एक तो जॉश टावर करके है, ठीक है. वो बहुत प्यारे ML के concepts लिया करता है. You guys can check out Josh Tarver and his Syntax also. Syntax Python के लिए बहुत सही है for the basics and ML concepts उसके भी बहुत अच्छे होते हैं. तो these two are मतलब बहुत concepts clear हो जाते हैं उससे. And coming to the deep learning part, मतलब it depends on your project. अगर तुमने deep learning का project किया है तो उसमें questions पूछेंगे. मेरा एक CNN का प्रोजेक्ट था फॉर माय publicist statement का intern. तो उन्होंने मुझसे पहले बेसिक्स पूछा ML एल्गोरिथम्स वगैरह वगैरह. उसके बाद उन्होंने पूछा कि if you have done a CNN project, can we ask you questions on deep learning? They asked me before actually asking the questions, and I was like, हाँ ठीक है, I'm pretty well versed with CNN, so you can ask me on CNN. So then they asked me basic concepts on CNN because that's what I had done in terms of deep learning. But अगर नहीं भी किया होता तो he would not ask me deep learning के questions because वो मैंने किया ही नहीं है. So he was asking me questions which were relevant to what I had done. अरे ना, But deep learning हाँ, कल upper hand. I was telling this cause मेरे डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, but then also he wanted to ask me deep learning, but when he knew that I have not done deep learning, so he just asked simple stuff like what are neurons and perceptrons. Also guys, I'm actually traveling, so I might have to drop off. कोई डाउट्स है या किसी से कांटेक्ट करना है तो LinkedIn का शायद अनुष्का के पास में LinkedIn आईडी है, वो शेयर कर देगी तुम लोगों के साथ. And you guys can ping me anytime. And all the best. Yeah. Bye guys. Okay. Thank you for your time, ma'am. Yeah, do we have GDs in data science, मतलब placement internships में भी? अभी तक तो नहीं हुआ. नहीं, इंटर्न में तो नहीं होता GD वगैरह, प्लेसमेंट्स में होता है, एंड दैट टू फॉर एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल्स. लाइक ITC का होता है ग्रुप डिस्कशन, पर वो अगेन सारी ब्रांचेस के लिए खुलती नहीं, और उसका रोल अरे वो कोर वाला हो एग्जैक्टली गया. डेटा साइंस नहीं है. नहीं, उन काम उन्होंने फाइनली लाइक एनालिसिस और थोड़ा मशीन लर्निंग का ही करवाया था. तो मतलब जैसे रोल मास्टर कार्ड पूछती है, मास्टर कार्ड GD लेती है, फ्लिपकार्ट GD लेती है, और ये तुम्हारा फ्लिपकार्ट APM के लिए जो आती है उसमें तो बहुत ही एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, पूरा डेक वेक प्रेजेंट करना रहता है. अरे मतलब हाँ, मतलब इट्स नॉट, पता नहीं कोई GD ले Yeah. प्रॉबली उन्होंने किसी या ज़्यादा लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए तो घटाने के लिए GD कर ही सकते हैं. दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईयर एंड कंपनी, बट अभी तक नहीं हुई है फॉर मतलब प्रॉपर मशीन लर्निंग रोल. ML रोल्स में तो नहीं होता है. So, talking to you, it is very clear that resume plays an important role on the D-Day. So, do you have some specific suggestions for us to add something in our resume? Like, बोल पापा को. hello? Go on. So, like, what are the spikes that one should need in his resume to make it more attractive or something? देखो, सबसे बड़ी चीज, मेरी इंटर्न ऑफ कैंपस थी, ठीक है. गेट फोल्ड अपने कैंपस में आती है, बट वो केवल सर्किटल के लिए खुलती है, ठीक है. तो ऐसा सीन हुआ था कि मतलब रेज्यूमे में देखो, ऐसी कोई भी चीज मत लिखो जिसको तुम जस्टिफाई ना कर पाओ.
अगर सीपीआई कम है तो मत लिखो, ठीक है, मतलब जबरदस्ती जरूरत नहीं होती है। And the one more question, like ऑफ कैंपस as अप्लाई you are करते हो तो ऑन कैंपस तुम्हें सीपीआई लिखनी पड़ेगी, ठीक है? as you are taught that हाँ, CPI ऑन is कैंपस तो लिखनी important. पड़ेगी, नहीं मैं अपना केस बता रहा हूँ। हम्म। How भैया ने तो frequently ब्रांच भी नहीं लिखी, सीपीआई इज CPI वेरी is used? इंपॉर्टेंट। भैया ने तो लिख दिया था सीधा इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री आईआईटी बीएचयू वाराणसी। मैंने ब्रांच भी नहीं लिखी थी। मतलब देखो ऐसा सीन होता है, देखो सीपीआई को तो तुम लोग प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको 9-10 मिल रहा है। ठीक है, हाँ, बट कुछ तो ऐसा रहता है लगी। बट यूजुअली सीपीआई जो है मैटर करता है काफी ज्यादा, क्योंकि मतलब नॉट जस्ट इंटर्न, मतलब प्लेसमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कट ऑफ रखती हैं, तो मतलब 7.5 के ऊपर तो रखना ही रहता है। इवन इफ कट ऑफ ठीक नहीं है, रखती, Cut-off कभी मतलब कभी तुम्हारा तो रहेगा ही तुम लोग का। सीपीआई पे तुमको सॉर्ट कर देगी, हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है सीपीआई पे। कट-ऑफ के बाद सीपीआई का कुछ लेना देना है, लाइक इंटरव्यू में या कोई रोल नहीं बहुत है लेना देना है, just मतलब a इंटरव्यू number? में लेना देना नहीं है, पर इंटरव्यू में इट विल नहीं है। हैव अ लेना देना टू गेट यू टू द इंटरव्यू। Okay. हम्म, मतलब वंस गेट Once टू you द are स्टेज ऑफ shortlisted, इंटरव्यू, उसके बाद तो मतलब सब तुम पे है। okay. इनफैक्ट बहुत बस यही टाइम है, फालतू का कचड़ा नहीं लिखना चाहिए रेज्यूमे पे, मतलब जबरदस्ती की चीजें, जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग समथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग स्पेस, वो काम मत करना। और एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए रेज्यूमे, बस। मतलब बेसिकली तुम इंटरव्यू में मेंशन ही मत करना ऐसा कुछ जिस पे तुम्हें थोड़ा डाउट है कि तुम इसको बता नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत केसेस में होता है कि वो लोग तुम्हारा रेज्यूमे खोल के भी नहीं रखते, तुमसे ही डायरेक्ट पूछ लेते कि क्या प्रोजेक्ट था तुम्हारा, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट्स ऑन। हाँ, तो दैट केस मतलब यू कैन ऑल्सो डू कि सपोज यू हैव मेंशन्ड 3 प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्ली वो 2 प्रोजेक्ट ही सुनेंगे, तो मेक श्योर यू पिक दोस 2 या प्रोजेक्ट। मतलब after you give 1-2 interviews, you'll probably have a strategy of how you explain Okay. those projects. Like Uh, how POR matters in our resume. They don't. कुछ नहीं होता। Okay. Okay. unless you're Nothing except their applying projects for and skills. अगर a अगर कोई सीनियर analyst, बोल रहा है ना, मतलब अगर कोई सीनियर बोल रहा है कि टेक काम करो प्लेसमेंट में हेल्प होगा, झूठ बोल रहा है। Okay. ने भी बहुत गलत जॉब्स सीख दे रहे हो आप ये बच्चों को, ये ऐसे नहीं, ये गलत बात है। भैया अपन आपने निकल ही तो लेंगे। कहा था हमें। अबे क्या आपने तो इससे काम करवा लिया है। तो हो गया ना भाई। हाँ, तो बेसिकली बहुत कम कंपनीज होती है जो लाइक प्योर देखती भी है, ओयो देखती है, Okay. काइंड ऑफ सुना है। पर मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट टू फिल योर रेज्यूमे अप टू शो दैट यू वर इन्वॉल्वड इन मतलब कॉलेज एक्टिविटीज, बट नथिंग मच मोर ज्यादा देन। लाइन, थोड़ी नहीं भाई, ज्यादा लाइन कर लो यार। रेज्यूमे में हो एसडी के लिए अच्छा कोई है। फर्क नहीं पड़ता, पर एसडी के लिए लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कर लिया करो दूसरे काम, मतलब बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा जो कॉलेज में ही प्रॉब्ली मिलेगा फिर। इट इम्प्रूव्स योर कॉलेज लाइफ टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर तुम कहीं इन्वॉल्व होते हो तो यू हैव पीपल बिल्कुल। टू टॉक टू, भाई मतलब ऑनलाइन में नहीं सच होगी इम्प्रूव इससे। अरे नहीं नहीं, ये लोग मीट में क्या क्या करते हैं मैंने सोचा भी नहीं। स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैक्सिमम वही सेलिब्रेशन होता है। मतलब हाँ, won't matter much, but But if people are, planning for an MBA after college life, तो POS वगैरह फिर वहाँ पे काफी काम आती है, अरे मतलब। पीओआर समटाइम्स मतलब अगर बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली लिख दो, लाइक अगर तुम वीपी वगैरह हो, जिमखाना के कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल लिख दो, हाँ, शेकी कन्वेनर वगैरह, हो किसी फेस्ट वो के, बड़ी चीज कन्वेनर होती है। वगैरह। लाइक इट्स, अब ये मत लिख मतलब देना अगर तुम वॉलंटियर हो किसी स्टार्टअप। फेस्ट के कन्वेनर हो या फिर वीपी वीपी हो तो इट्स मतलब जनरल दैट यू हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, तो उनको एक कभी कभी पूछ लेते हैं वो, लाइक फॉर जस्ट फॉर मतलब आइस ब्रेकिंग टाइप की, व्हाट एचआर हैव यू में, डन एचआर इन राउंड में कॉलेज टिल कभी नाउ। कभी ना। हाँ हाँ, हर इंटरव्यू के पहले थोड़ा एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, तो दे आस्क योर हॉबीज एंड हिम्मत व्हाट यू निकाल डू इन लेते कॉलेज एंड वो सब, तो उस टाइम पे थोड़ा काम में आता है बाकी। या तो लाइक एज यू हैव सेड कि कंपनीज कम आती है, तो जैसे प्रखर भैया ने भी ऑफ कैंपस अप्लाई किया, तो लाइक ऑफ कैंपस यूजुअली कोल्ड मेलिंग या फिर अपन लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं।
तो मैं लाइक क्या हमारा मैं लिंक्डइन अकाउंट किन के देता हूँ लाइक जॉब सर्किटल के लिए डेटा साइंस में सिर्फ 9 कंपनीज हायर करी थी और बाकी कुछ कंपनीज ऐसी आई थी जो या तो हायर ना करके चली गई या फिर उसके बाद उनका कोई खबर ही नहीं मिला या फिर उन्होंने मिड ओके प्रोसेस से पुल आउट कर दिया। ऑल्सो कुछ कंपनीज आएगी डेटा साइंस में जो कि अनपेड होगी, probably मतलब डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अनपेड तो लाइक इंटर्न्स करने का कोई सेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं आता काम करने का। हाँ एक तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, दूसरा कि द पर्सन हु वुड बी रिपोर्टिंग टू प्रॉब्लम उसको भी मोटिवेशन नहीं आएगा कि तुमको कुछ बताने का या काम फिर भी ढंग का नहीं बस करवाएंगे हाँ मोस्टली। हाँ, because if he's not spending anything on you, what motivation does he have to get an output out of it? that's so obviously. So like how should we manage our LinkedIn account, or how should we approach someone to give us job, or how do we do cold mailing? ये कमल भैया बताओ, आपने पूरा कोर्स किया मैंने। अरे देखो यार, बेसिकली ऐसा होता है, ये अगला एक लिंक्डइन और अपना सेशन मेंटेन रखते हैं करना। एसपीएस का। क्रैश कोर्स करवाते हैं। अभी देखो, Will be a सबसे pleasure. इम्पोर्टेंट चीज लिंक्डइन अपना डेफिनेटली मेंटेन रखो, क्योंकि मतलब और उसको मेंटेन करना मुश्किल भी नहीं है। स्किल्स अपने जो रीसेंट हैं, जो मतलब हैं तुम्हारे पास, वो लिस्ट आउट कर दो। फोटो वगैरह तमीज की लगी होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब सेल्फी नहीं, एकदम प्रोफेशनल चाहिए। Okay, हाँ like सूट वाली चाहिए। देखो कमल भी ऐसे मतलब यही एडवाइस ले सब रहे थे, रहता सूट है। और वाली रेलेवेंट सिक्योरिटी बढ़ेगी। और रेलेवेंट लोगों से कनेक्शंस बनाओ। मतलब लाइक अगर तुमको डेटा साइंस में जाना है तो गेट कनेक्ट विद पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू डेटा साइंस। और उसको करने का तरीका ये होता है, कोई कंपनी सर्च करो जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हें पसंद हो, टारगेट कंपनी हो तुम्हारी। सपोज तुम्हें गूगल पसंद है, गूगल सर्च करो, उसके पीपल वाले सेक्शन में जाओ, सबको एक साथ रिक्वेस्ट भेजते जाओ। मैं यही करता था, और ऐसा मैंने okay, बहुत सारी कंपनीज के लिए किया है। और फिर एक मेरा प्री टाइप्ड मैसेज होता था जो मैं सबको भेज देता था, रेज्यूमे अटैच करके। ठीक है, मतलब इट शुड बी लाइक थोड़ा एकदम पोलाइट टोन में तुम उनको पूछो कि ओपनिंग है कि नहीं। और इन जनरल पीपल आर नाइस, दे रिप्लाई। ठीक है। और रही बात कोल्ड मेलिंग की, तो उसके लिए तुम्हारे पास उतने ईमेल्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, एक मेरे पास पाइथन स्क्रिप्ट है। ठीक है। और मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी काफी थे, एक साथ मेल कर दिया सबको। Did you write that as a project? नॉट एट ऑल, ये कोड फेस्ट के कन्वीनर है ना, भाई ने दी थी। okay. भैया प्लेसमेंट इंटर्न में तो 9 कंपनी जाती है और प्लेसमेंट में कितनी जाती है? भाई मैंने लाइक नॉन सर्किटल का कहा, तो सर्किटल में और भी लाइक माइक्रोसॉफ्ट का एक रोल होता है, और परमार ज़्यादा बता पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का रोल होता है, फिर अडोबी का एक रोल होता है, फिर मोस्टली प्लेसमेंट में भी ऑलमोस्ट सेम केस ही होगा, एनालिस्ट मतलब ज़्यादा बहुत होगी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अरे बेसिकली द थिंग इज कि वेरी फ्यू कंपनीज विल ट्रस्ट यू एज एन एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट, मतलब विद जस्ट अ बैचलर्स डिग्री डेटा साइंस, मतलब बहुत कम कंपनीज किसी को एज अ डेटा साइंटिस्ट ट्रस्ट करती है। तो probably the best way is to start as a analyst and then move your way to become a data scientist. या बट इन द कमिंग ईयर्स डेटा साइंस का रोल वैसा ही होने वाला है जैसा अभी एचडी का है, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इट अर्ली। अभी तो भी मतलब इट डिपेंड्स कि मतलब कब बूम करेगा यार। हाँ बहुत जगह अप्लाई होती है डेटा। इनफैक्ट देयर आर आल्सो केसेस जहाँ लाइक तुम्हें एसडी के लिए उठा के लेके जाते हैं, बरी और मतलब दे मेक यू वर्क ऑन हाँ, मशीन लर्निंग मशीन एप्लीकेशंस। लर्निंग। एक वेरी बैड एट रिकमेंडेशन दैट। सिस्टम इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ मशीन लर्निंग सिस्टम, और वो जनरली एसडीज ही बनाते हैं रादर देन डेटा साइंटिस्ट्स। So like if they hire you for SE and then they move you to the data scientist section, so what is the skill they need? Like what did they see? यार हायरिंग्स आर ना, मतलब हायरिंग्स आर वेरी कंपनी स्पेसिफिक, what role they need, sometimes you might not be able to gauge from the JD also,
there are basic skills that they basically look for a basic threshold of skills and probably the best set of candidates they can get out of a subset. And what you can do is basically learn the minimum threshold set of set of skills, and rahi baat technologies ki, that is something which will be introduced to you once you join a specific company, as was told earlier. So get your मतलब ये जो Python skills कंपनी good. स्पेसिफिक वाली बात कही दिव्यज्योति ने, उसका लाइक आई वांट टू गिव एन एग्जांपल. लाइक मैं जब इंटरव्यूज दे रहा था फॉर इंटर्नशिप्स, तो मेरे 2-3 जगह शॉर्टलिस्ट थे. मतलब एक मेरा स्प्रिंकलर में शॉर्टलिस्ट था फॉर द रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट. तो स्प्रिंकलर क्या करता है, स्प्रिंकलर अपने इंटरव्यू में एनएलपी स्पेसिफिक शिट पूछता है, ठीक है. और एटफोल्ड ने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने मेरी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लाइक यू नो नॉर्मल चीजें पूछ के जज करी, और उन्होंने मुझसे डीएस आल्को के क्वेश्चंस भी करवा लिए. लाइक 3 राउंड में हुआ था टोटल पूरा इंटरव्यू. तो जो मेरा सेकंड राउंड था, इट वाज अ प्रॉपर 2 आवर कोडिंग राउंड, लाइव कोडिंग, स्क्रीन शेयर करके कोड करवाया था उन्होंने. मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं और हम करते जाएं, मतलब इट वाज मोर लाइक अ डिस्कशन. मतलब और ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम पूछे जा रहा है, एकदम बॉम्बार्ड किया जा रहा है मेरे ऊपर क्वेश्चंस, नहीं. मतलब एकदम ब्रेनस्टॉर्म करके दोनों लोग कर रहे थे, ऐसा था. तो मतलब One more skill out of this is when you होती है. probably a question is asked to you in an interview, rather than just going through it in your head, it's better to keep the interviewer also engaged in it and उसको भी धीरे धीरे बताते जाओ कि तुम क्या सोच रहे हो. So he'll see what he wants to see is your approach rather than तुम finally कहाँ जाके पहुँचे. Also, since दिव्यज्योति साइड की कंपनी स्पेसिफिक होता है, तो कमल का जो 8fold का इंटरव्यू था, उसमें जो क्वेश्चन उनसे करवाया था ना, जो कोडिंग राउंड बोल रहे हैं वो गूगल का इंटरव्यू क्वेश्चन था. बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, ऊपर गूगल लेवल का था. मतलब वो तो उसमें फिर वो लोग वो नहीं देखते हैं डिफिकल्टी लेवल, वो पूछ लेते हैं उनको जो पूछना है. और काम कैसा करवाया है वो भी अलग चीज है. मतलब तो उनका पता नहीं, ये हायरिंग प्रोसेस हमेशा मिसमैच ही होता है रोल के साथ, तो इसलिए You can वो probably get a gauge out of it by seeing what product the company is currently making, and मतलब उसका focus कहाँ पे है अभी. उसका जहाँ पे focus होगा, there will be pretty high chances that you are getting hired for that role. कभी कभी ऐसा भी होता है, they want to start up something new, तो exploratory work पे ले ले, तब तुमको पता नहीं चलेगा. That is something, that's a मतलब uncertainty जो but that is again a lot of hard work and I don't think उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स यील्ड होंगे जो अप्रोच तुम बता रहे हो, बिकॉज कंपनीज को ही नहीं पता होता क्या काम करवाना है कई बार. मतलब अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स ले लो या बड़ी से बड़ी कंपनीज ले लो, दे डोंट नो व्हाट दे आर हायरिंग फॉर. दे आर जस्ट टोल्ड कि इतना हायरिंग करना है. जिसको पता होता है वो नहीं बैठा होता है ना वहाँ पे, और वो अपनी रिक्वायरमेंट से हमेशा पास ऑन नहीं करता है कि ये चीजें पूछ के लाना. तो वो बहुत सारे फैक्टर्स. हेलो भैया, मेरा नाम माय नेम इज़ आनंद एंड भैया आप बोल रहे थे कि कंपनीज जैसे कि बहुत कम आती हैं मतलब डेटा साइंस के रोल्स के लिए फॉर नॉन सर्कुलर ब्रांच. तो जैसे कि लास्ट टाइम से कुछ इंक्रीज़ हुई है कंपनीज जैसे, या फिर आगे और इंक्रीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत मतलब है ना बूम कर रही है ये ब्रांच, ऐसा मतलब सब बोलते हैं ऐसे. भाई हर साल बढ़ती हैं कंपनीज, और मतलब हर साल बढ़ ही रही हैं. जैसे इस साल जूम भी आई थी डेटा इंजीनियर के रोल के लिए फॉर प्लेसमेंट्स, और हर साल वो धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं. तो मतलब इस चीज की टेंशन मत ले कि कंपनीज नहीं आएंगी, क्या होगा, चिल करो, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, तुम अपस्किलिंग पे ध्यान दो. ऑन कैंपस कंपनीज नहीं आई तो देयर विल बी स्टार्टअप्स यू कैन अप्लाई टू ऑफ कैंपस. स्टार्टअप्स अभी बहुत स्टार्टअप्स है जो डेटा साइंस के ऊपर काम कर रही है. एंड मतलब रही बात कंपनीज इंक्रीज करने की, दैट इज अगेन अ थिंग कि वो जो नई कंपनी आती है वो भी कैसा हायर करना चाहती है. इवन अब वो आके इवन कुछ डेटा साइंस रोल्स के लिए ना इट डजंट इवन ओपन अप फॉर द एंटायर सर्किट, सिर्फ मैथ्स और सीएससी के लिए खुलती है, ऐसा भी होता है. हाँ. तो मतलब इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते, मतलब अभी तो नहीं दे सकते कि आएगी तो ओपन फॉर ऑल करके ही आएगी. आई डोंट नो अबाउट दैट. एक गारंटी इज पब्लिसिस विच हर साल आती है एंड ओपन फॉर ऑल होती है उसकी डीएस वाली प्रोफाइल. बाकी इज
डिपेंडेंट ऑन चांस की उस कंपनी को उस ईयर कितनी रिक्वायरमेंट है। And that's exactly why you shouldn't focus on companies कौन सी आ रही मतलब ठीक है बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए बट प्रिपरेशन करते हुए हमें तो यही रियलाइज हुआ था कि ये हमारा हेडेक नहीं है। अपस्किलिंग इज व्हाट आवर हेडेक शुड बी कि मेरे को मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हायर यू इफ यू आर स्किल्ड एट व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर। ठीक है। In fact, if you're good at data science, you will be good at data analysis, and if you're good at data analysis, there will be plenty opportunities for you to apply for analyst role. कंपनीज बहुत इंटरेस्टेड होती है और अपन आईआईटी का टैग लेके जाते हैं तो अपन ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं अपने आप अपन एक ब्रांड हो जाते हैं उनके लिए तो दे वांट टू हायर यू। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दैट यू पीपल विल गिव will be of the type कि they want to hire you. They have come here to spend 1 hour or 1.5 hours with you so that they can take you. Unless you give a reason to, not give you the offer, they'll give you the offer. तो तुम्हें बस कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तो you'll make it through. ऐसा है तो बढ़ाते जाओ बस। भाई जैसे बोलते हैं कि जैसे डेटा एनालिस्ट के रोल्स के लिए जो कंपनीज आती है तो वो बिजनेस एक्यूमेन भी देखती है, जैसे कि इसके लिए कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे। तो अगर हम मोर जैसे डेटा साइंस की तरफ से अगर हम अप्लाई करें डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए तो वो कितना वेटेज रखता है कि हमें इतना बिजनेस एक्यूमेन रखने के लिए एक्सपेक्टेड हो। बिजनेस एक्यूमेन वैसे भी बहुत मतलब काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, इवन इफ यू आर डेटा साइंटिस्ट बिजनेस एक्यूमेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में अगर तुम एमएल पढ़ोगे देयर आर स्टफ लाइक प्रेसिशन एंड रिकॉल, तो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन विच यू नीड अ बेटर प्रेसिशन रादर देन अ बेटर रिकॉल। तो प्रेसिशन रिकॉल बेसिकली ऐसे कैलकुलेट होता है कि वो ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स के बीच कैलकुलेट होता है, बट मतलब द बेसिक आइडिया इज कि somewhere you'll have to prioritize getting a correct result more accurately than getting than the percentage of getting a wrong result. तो ये तुम्हें हर एक जगह पे अलग अलग होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एनालिस्ट को तो उसका बिजनेस एक्यूमेन इम्पोर्टेंट होता ही है क्योंकि एनालिस्ट वर्क्स वेरी क्लोजली विद द प्रोडक्ट बीइंग मतलब शिफ्ट आउट, उस प्रोडक्ट से जो फाइनली उस प्रोडक्ट से जो डेटा वापस आ रहा है। तो अनलेस यू अंडरस्टैंड कि वाई द कंपनी इज यूजिंग दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज इट्स टारगेट, तुम्हें यही नहीं समझ आएगा कि तुम इस डेटा का करोगे क्या, तुमको इस डेटा से क्या निकालना है। Also real world में you don't get Kaggle पे जैसे डेटा सेट्स मिल जाते हैं वैसे नहीं मिलता है ना कंपनीज में। They just tell you the problem statement and you have to collect the data around it जो भी relevant है, फिर उसका तुम रिजल्ट क्या किस तरफ बढ़ रहे हो वो उस डेटा के साथ वो रिजल्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें तुम तभी अपने दिमाग में समझ सकते हो जब तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट किस बारे में and what is the business requirement of the problem statement given to you. So that is why this becomes very important and like but basic business acumen मुझे लगता है कि सब में होता है like और सिंस अपन जेई भी निकाल चुके हैं तो होता ही है। मतलब मैंने तो ऐसा कोई बंदा देखा नहीं है जिसमें नहीं है आईआईटी में आईआईटी की में। तो आई थिंक उसके बारे में यू डोंट हैव टू वरी मच बट क्वेश्चंस वगैरह सैंपल कहीं पे मिल जाए कुछ तो वो देख लेना, विल गेट एन आइडिया। तो एक बार आइडिया आ जाएगा तो तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दोगे बिकॉज यू विल नो कि यू कैन डू इट। मतलब इट्स जस्ट बिकमिंग अ बेटर डेटा साइंटिस्ट एंड नॉट जस्ट समवन हु नोज सम एल्गोरिथम्स। तुम एक कंप्लीट एक पर्सन बनोगे रादर देन जस्ट एक तुम्हें एल्गोरिथम्स पता है तुम जस्ट अप्लाई कर देते हो। भैया एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो जी पूछो। बोलना भाई। लाइक माई सेल्फ उत्कर्ष, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो भैया एक क्वेश्चन था कि लाइक जो कंपनीज आती है हमारे कैंपस में डेटा साइंस और इन सब रोल के लिए, तो उनका बेसिक प्री रिक्विजिट मतलब क्या, मतलब एक हो गया जो एक बेसिक मशीन लर्नर चाहिए और एक हो गया जो स्पेशलिस्ट लाइक एनएलपी स्पेशलिस्ट, ओपन सीवी स्पेशलिस्ट वैसे चाहिए। तो लाइक एज एन इंटर्न आपको क्या क्या आना चाहिए उस फील्ड के लिए? एक कंपनी आती है हाइपरवर्ड्स, ठीक है, उनका काम मतलब टोटली इन कंप्यूटर विजन है।
तो वो तुमसे कंप्यूटर विजन ही एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हें ओपन सीवी आता हो, मतलब तुमने काम किया होगा ओपन सीवी पे और तुम्हें CNN आते होंगे, फिर इमेज प्रोसेसिंग आती होगी। ये एक तरीके की कंपनी हो गई जिसकी बहुत ही मतलब रोल स्पेसिफिक है, और एक होती है नॉर्मल डेटा साइंस वाली जो तुमसे बेसिक ML एल्गोरिथम्स एक्सपेक्ट करती है, लाइक क्लस्टरिंग हो गया, रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्रीज हो गए, ensembles के थोड़े थोड़े, एंड probably a bit of normal applied neural network कह सकते हो। ये एक फील्ड ऑफ कंपनीज होती है। तो बेसिक स्किल्स मेरे हिसाब से तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, एंड सब तुम देखना, सब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लिख के रखेंगे अपने जेडी में कि तुमको इसका आइडिया होना चाहिए, एंड इट्स ट्रू, मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का तुम्हें आइडिया होना ही चाहिए। तब यू डोंट हैव टू गो बैक एंड राइट टू ग्राफ्स, मतलब देयर आर मॉडल्स विच आर ग्राफ बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स भी होते हैं, पर तुमको उतना दूर नहीं जाना है। मतलब यू बेसिकली स्टफ्स लाइक एरेज एंड तुम्हारे ये हो गए डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि यू वुड नो। Also, one more thing, since you guys are just मतलब will be starting off अभी या फिर already start कर दिया होगा, start using Kaggle more and more उसके competitions दो, because हर company के advanced मतलब क्या बोलते हैं, good to have में लिखा होता है कि Kaggle ग्रैंड मतलब Kaggle का कुछ पोजीशन होता है तो वो लिखा होता है, मतलब Also they कुछ do कंपनीज value. तुम्हारी Kaggle is becoming a प्रोफाइल मांग platform लेते where all the people with interest in data science come together, and वो Google का है कहीं ना कहीं, I think, तो it's very easy to use and it's very friendly. Even we are trying to inculcate a habit of using Kaggle for competitions and projects. तो start using Kaggle, और दूसरी तरफ से GitHub भी maintain करना अपना, प्रोजेक्ट्स के लिंक डालना रेज्यूमे में, so that those guys can see beforehand, मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। मतलब ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉब्ली हाँ ऑन कैंपस वाले ऑफलाइन, तुम्हारे लिंक खोल के देखते नहीं हैं, उनके पास इतना हाँ टाइम वही नहीं तो है। these are also important things जो जिनका ध्यान रखना। हाँ, अपना गेटअप मेंटेन करके रखो। एंड मतलब बहुत कंपनीज आती है जो लाइक तुम्हारा FNSD में भी तुम्हारा कैगल प्रोफाइल लिंक या गिटहब लिंक मांग लेते थे फॉर्म भरवा के, या फिर मतलब कैगल पे तुम्हारा कोई अचीवमेंट है कि नहीं ये भी पूछते थे। तो मतलब यू कैन डू इट, मतलब आई विल नॉट से कि तुम करोगे तो तुमको हर कंपनी में इसका फ़ायदा मिलेगा, पर इट्स तुम्हें खुद फ़ायदा मिलेगा, दैट इज श्योर। Guys, I think I'll have to drop off. I have a meeting at 5:45 अभी मतलब 15 सेकंड में, तो Thank you for your time. That आउट हुआ तो मेरे को पिंग कर देना कभी भी, लिंक्डइन व्हाट्सएप कहीं भी, ठीक है? I'll answer. ठीक है Yeah, भैया। ठीक है? thank व्हाट्सएप नंबर कैसे मिलेगा आपका? हाँ, व्हाट्सएप पे लिंक्डइन पे मैं मिल भेज जाएगा। दूंगा अभी चैट में, हाँ वो उसको भेज दूंगा, yeah, इसको एक अनुष्का को भेज दूंगा। yeah, हाँ, ठीक है, sure. चलो। बाय, थैंक यू। Thank you. भैया आप इन वेबसाइट्स का नाम चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो? उसका यानी जैसे कि अपन सीपी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कोड फोर्सेस या हैकर रैंक पे, वैसे जो भी डेटा साइंस का हो। भाई कैगल है, सिंपल नाम है KGGLE। टैगल, हाँ KGGLE टैगल। भैया ये कंपेटिटिव कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है डेटा साइंस में? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कंपेटिटिव कोडिंग का तुम्हारा रैंक डजेंट मैटर, तुम कोड फोर्सेस पे क्या रैंक करके रखे हो वो सब डजेंट मैटर। प्लेसमेंट में स्प्रिंकलर की डेटा साइंस वाली प्रोफाइल आती है जो कि उसका फर्स्ट राउंड तुम्हारा प्रॉपर कंपेटिटिव कोडिंग वाला राउंड होता है, मतलब कंपेटिटिव कोडिंग इन द सेंस क्वेश्चंस तुम्हारे कंपेटिटिव कोडिंग वाले होंगे, और देन इंटरव्यू में भी पूछेंगे CP वाले क्वेश्चंस। और मतलब कुछ कंपनीज यार मतलब तुम्हारा कुछ कंपनीज तुम्हारी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी देखने के लिए भी लास्ट में पूछ लेते हैं इंटरव्यू के लास्ट में कि तुम ये वाला सॉल्व कर दो। जैसे पब्लिसिस्ट में मुझे पूछा था कि नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि 1 से 100 में प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाने, तुम नॉर्मल सीव्स मेथड यूज़ करके कर सकते हो, तो उसमें उसको बस देखना था कि मेरा पाइथन में कितना फ्लुएंसी है। भैया तो जो कोडिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे थे वो पाइथन
लैंग्वेज में बोला था करने को? पब्लिसिस्ट वाले ने सिर्फ पाइथन और स्केला यूज़ करने दिया था और कोई लैंग्वेज यूज़ करने ही नहीं दिया था। स्केला को यूज़ करता है नहीं अपने कॉलेज में प्रॉब्ली, तो सब पाइथन में किया था। तो भैया लाइक अभी लाइक मैं अगर करता हूँ CFG कोर्स पे, तो वो बेसिकली कट रही है आवाज़। हेलो भैया स्प्रिंकलर ने अलाउ किया था पाइथन अपने प्लेसमेंट मतलब? हाँ अरे देखो, जितने भी ऑन कैंपस डेटा साइंस प्रोफाइल्स आएंगे सभी एक्सपेक्ट करते तुम पाइथन यूज़ करते हो। मतलब बहुत कम कंपनीज ही पाइथन छोड़ के दूसरे लैंग्वेजेस में डेटा साइंस करती है। नहीं, आप जो बोल रहे थे ना कि वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव कोडिंग राउंड कराती है पहले, तो उसके लिए पूछ रहा था कि उसमें पाइथन अलाउ किया था? इसमें तो तुम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे अपने प्लेसमेंट के टाइम पे पता चलेगा कुछ महीने बाद। और भैया एक और क्वेश्चन था, लाइक जो अगर रोल स्पेसिफिक्स लाइक NLP इंजीनियर, अगर NLP साइंटिस्ट, तो वैसे टैग्स के लिए BHU में कंपनीज आती है क्या ऑन कैंपस पे, कि उसको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ता है, लाइक OpenCV साइंटिस्ट या फिर NLP इंजीनियर के लिए? नहीं, ऐसे रोल्स करके नहीं आती। वो बेसिक डेटा NLP भी तुमसे तभी पूछेंगे इंटरव्यू में जब तुमने उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया होगा। हेलो भैया, हाँ भैया, शार्दुल मैकेनिकल थर्ड ईयर। और एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैंने अभी सेकंड ईयर में पूरा पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं किया ऑनलाइन में, और अभी स्टार्ट आउट कर रहा हूँ। तो कैंपस का तो सोच नहीं रहा मैं। बीटेक है या IDD है? बीटेक भाई, बीटेक बीटेक। अभी तो इसको जाग गया ना वो, हाँ अभी तो वरना इधर होता भी नहीं। हाँ अभी जागा हूँ। तो मैं तो बोल रहा था कि ऑफ कैंपस में अभी केस में तो थोड़ा बहुत DSL को पूछ लेती है ऑन कैंपस में डेटा साइंस वाली कंपनीज, तो ऑफ कैंपस में जनरली पूछ लेते हैं या फिर नहीं पूछते वो? DSL को की बात कर रहा हूँ। परमा, तेरे को अभी प्रखर भैया ने कहा ना कि उनको स्प्रिंकलर ने पूछा था, फिर ईटफोल्ड AI ने भी पूछा था। अच्छा ओके, नहीं ओके ओके भैया, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी प्रीटी टेस्ट वगैरह था तो उसकी वजह से मैं आधे में ज्वाइन हुआ। अरे ठीक है, पर मतलब दैट्स आल्सो मतलब कंपनी स्पेसिफिक कि तुमसे DSL को पूछेंगे कि नहीं डेटा साइंस प्रोफाइल के लिए। इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका जो करंटली जो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर वो ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं तो तुम्हें ग्राफ आना चाहिए होगा ना। एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे तो। हाँ मतलब बेसिक तो भी आना। हाँ भाई, बाकी अगर ओके भैया, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, एक बार प्रखर भैया का मेरे को टेक्स्ट कर लेना, विल टॉक। एंड फॉर हाँ भैया, मतलब ऑल अभी ऑफ यू आपको जस्ट, लिंक्डइन पे इनवाइट भेजा है मैंने, अच्छा तो यार ये ऐसे मतलब चलो, मतलब भाई नंबर भेज दो यार, ये लिंक्डइन यार। हाँ भैया, मैंने भी अभी लिंक्डइन पे आपको लाइक रिक्वेस्ट भेजा है। व्हाट्सएप भेज दो, ठीक है, लिंक्डइन पे भेज देना सारे, तो कनेक्ट हो जाएंगे अपन, पर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना यार। भैया व्हाट इज भैया योर ठीक, नंबर? एक्चुअली आपका हमारे पास है नहीं। अच्छा 9 बोल दूं अभी, 9381 हाँ बोल दो। 444 955। ओके भैया, थैंक्स थैंक्स लॉट। अरे हाँ Any other question? हेलो भैया। हेलो सो लाइक मतलब प्रोजेक्ट्स कौन से टाइप के करने चाहिए? ML एल्गोरिदम्स वाले प्रोजेक्ट करे या फिर ML जो नॉर्मल अपने कंप्यूटर विजन NLP वाले प्रोजेक्ट्स करे, या दोनों चलते हैं? कौन सी ईयर में हो अभी? सेकेंड ईयर। हाँ तो तुम्हारे पास तो अभी टाइम है। बहुत टाइम है तो तब तक अगर तुम NLP कंप्यूटर विजन कोर्स तक पहुंच पाते हो तो तुम उसके प्रोजेक्ट्स लिखना। बाकी अगर कोई लेट स्टार्ट कर रहा होगा तो वो नॉर्मल एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स लिखेगा।
कंपनीज वोंट जज बेस्ड ऑन दैट। मतलब अगर उसको बहुत ही मतलब कोर कॉम्पिटेंसी उसकी कंप्यूटर विजन नहीं होगी तो दे वोंट जज यू कि तुमने मतलब एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स यूज़ किए मेरा के कि तुमने एकदम हाई फाई कुछ NLP के फंडास यूज़ किए। भैया Any other जो question? भैया जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे वो यूनिफ हैकाथॉन होता है, कैगल पे होते हैं, तो लाइक वो सब पार्टिसिपेट करना लाइक बहुत कंपलसरी हो जाता है ना उन सब में। लाइक अगर अच्छा रैंक आता है तो वो लिंक्डइन वगैरह पे भी हम लोग शो कर सकते हैं। तुम लोग को ये लिंक्डइन पे इतना पोस्ट करने का क्या मतलब भाई क्या शौक मचा है, scope मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है भाई आज तक ढंग से दूसरों के पोस्ट शेयर में। क्या मतलब, नहीं मतलब देखो लिंक्डइन करनी थी क्या मतलब, अब पोस्ट मतलब वोस्ट कर it's सकते हो, you're trying अचीवमेंट to में ऐड हो gather a जाएगा, presence। पर ठीक है ये It's सवाल ही okay you're नहीं। trying to gather a presence but हर चीज को probably मतलब लिंक्डइन पे एज अ पोस्ट तुम डिक्लेयर ना भी करो तो चलता है, just add it in your LinkedIn bio ये चलता है। पूरा एक और सेशन लेना पड़ेगा। When we came to campus, mostly we used to look up at LinkedIn because there were content, मतलब people used to write good content in that. तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। There were people like Pratyush, then we used to look at contents of Aviral Bhatnagar। इन सब के कंटेंट जो हमें मिलते थे तो इनसे हमें बहुत इंसाइट्स मिलते थे। पर अभी मैं लिंक्डइन खोलता हूँ तो मुझे मोस्टली मिलता है कि someone has started doing this, someone has started doing अभी that। तो बहुत खराब कर दिया है वो। That's okay for your presence but also it doesn't add any value to the person seeing that, right? ये तो है। और तुम किसी को ये अपना तो लिंक्डइन प्रोफाइल देखने भी बोलोगे तो वो जाके वो चीज़ नहीं देखेगा। भाई कोल्ड ईमेल, मेरे को लगता है कोल्ड ईमेलिंग इज मच बेटर देन लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजिंग, बिकॉज पीपल don't reply all the time on LinkedIn, but mails पे you do get a reply in majority अगर of the cases। तुमको सही ईमेल आईडी मिल जाती है, हाँ सही ईमेल आईडी मिलता है तो उसका वर्क ईमेल मिलता है तो ज़्यादा चांसेस। तो उसमें तो थोड़ी मेहनत लगेगी, वो ईमेल आईडी तो ढूंढना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ शेयर कर दूंगा मेरे पास होगा तो। बाकी you can obviously ping someone on LinkedIn for doubts, तो वो कुछ नहीं बोलेगा। मतलब if he wants to reply he'll reply। पर मतलब अपने achievements you can basically put it in your bio if it's not a really big achievement कि तुमने कुछ number 1 आ गए all over India or something like that। तो सब मतलब ठीक है, मतलब सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं रीच बढ़ाने की। Does that answer your question? किसका क्वेश्चन था ये? भैया लाइक एक और क्वेश्चन है। लाइक जो गिटहब पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं तो उसके चांसेस रहते हैं कि प्लेगरिज्म के लाइक कोई कॉपी कर सकता है दूसरा, तो उसको क्या पब्लिक करके गिटहब पे शो करना जरूरी रहता है क्या? तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करने से पहले लास्ट क्वेश्चन में कुछ चीज़ आंसर करना बाकी था कि वो पूछ रहा था कि हैकाथॉन्स सब में पार्टिसिपेट करना मतलब कंपलसरी हो जाता है कि नहीं। बेसिकली इट्स नॉट कंपलसरी, तुम पे डिपेंड करता है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑनर्स, मतलब वो अगर तुम इफ यू डू गुड यू कैन राइट इट इन योर अचीवमेंट्स व्हिच इज़ अ गुड पॉइंट। मतलब many companies also ask कि have you participated in hackathons or stuff like that before। मैंने उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होते देखा नहीं है पर probably अगर वो Good पूछते to हैं have मतलब valid they reason. look it up, मतलब if they are asking probably they have some footage for it। Yeah. And And coming to sir, your question कि GitHub पे प्लेजरिज्म का केस नहीं, GitHub पे कोई प्लेजरिज्म का केस होता नहीं है। पर मतलब डायरेक्ट फोर्क करके डायरेक्ट किसी की रेपो फोर्क करके उसका लिंक मत डाल देना कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, इतना मत अरे करना। नहीं, वो उल्टा केस पूछ रहा है भाई, मैं इसीलिए तो मैं खुद से जानना चाहता हूँ कि तुम खुद के प्रोजेक्ट करते हो क्या, तुम कहीं से कॉपी नहीं करते? नहीं लाइक भैया मैंने अपना लाइक जो भी बेसिक प्रोजेक्ट डाला है उसको गिटहब पे डाला है, बट अभी वो प्राइवेट है, तो क्या उसको पब्लिक कर देना चाहिए हाँ कि नहीं? पब्लिक कर दे भाई, हाँ कोई भाई, दिक्कत नहीं है। क्या गिटहब तो प्रॉब्लम है भाई बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं भाई। भाई, गिटहब का कॉन्सेप्ट ही तो था कि लाइक योर कोड इज ओपन टू द वर्ल्ड। हाँ वर्जन कंट्रोल छोड़ के ये भी तो एक मतलब उसका ऑब्जेक्टिव था। अरे तेरा ओरिजिनलिटी तो रहेगा ही, वो यूज करना चाहेगा तो उसको क्लोन करना पड़ेगा ना।
यस भाई। तेरे में तो वो एडिट कर नहीं सकता आके, तो उसका वो जो कर रहे है उसको करने दे। अनलेस तेरे को भरोसा है कि मेरा वाला तो मेरे को आता है, मैं नहीं किया है, बस खत्म। अनलेस तू कोई मतलब फर्म खोल रहा है नया जो कि वो तेरा ट्रेड सीक्रेट है तो हाँ वो हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अनलेस तू ऐसा बहुत ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया है जो एकदम मतलब दिखा नहीं सकती जो, तो फिर प्राइवेट रखो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट जनरली ऐसे नहीं होता है ना कॉलेज में, तो अपने साथ तो पब्लिक कर दिया करो है, तो तभी लिंक डालने का फायदा भी है कहीं पे। एंड भैया अभी अभी लिंक्डइन पे अकाउंट बना रहा था, तो उसमें स्पेशलाइजेशन में क्या डालना है, यानी ब्रांच तो अपनी फार्मा और ये है। ये नहीं, ये भाई कैसा जो सवाल है? है डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। डाल के एक बार देख ले प्रोफाइल कैसी दिख रही है, कहाँ क्या क्या गलत गया है मैं फिर से भर फील्ड्स, मेरे को भी नहीं पता कहाँ क्या डालना है। मैं डाल के देखी, मैंने लैपटॉप पे खोल के देखी, फिर मैंने एडिट करा कि अच्छा ये यहाँ गलत चला गया, ये यहाँ गलत। किसी को डेटा साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो हाँ डेटा साइंस रिलेटेड पूछना है, मतलब ये लिंक्डइन का मैं बोलता रहा हूँ, अलग सेशन अभी है ना, कमल भैया से बात कर लेना, वो बता देंगे सब। भैया जैसे मैं अभी अभी काफ़ी मतलब बिगिनर स्टेज में हूँ मशीन लर्निंग में, तो इस समय मुझे एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करते समय पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करने चाहिए एसक्यूएल वगैरह के, या फिर प्रॉपरली उसको नंपाई और सिर्फ पैंडास यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए? मतलब सब अगर तू अप्लाइड मशीन लर्निंग कर रहा है तो ऑब्वियसली तू एसक्यूएल से अप्लाई करेगा। और मतलब वो कंपनीज डोंट इवन मतलब एक्सपेक्ट कि तुम्हें मतलब ये सब एल्गोरिथम्स का बैकएंड पूरा पता होगा, मतलब मेरे से नहीं पूछा गया है कभी। एवरीवन डज अ सिंपल मतलब एक मतलब एक्सपेरिमेंट सब करते हैं कि नंपा यूज़ करके न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं पहली बार, बट नथिंग मोर देन दैट। तुमसे अभी कोई ऑन्सेम्बल क्रिएट नहीं करवाएगा अगर तुम अप्लाइड मशीन लर्निंग करोगे तो। अगर तुम्हें नया मॉडल बनाना होगा खुद से, देन यू विल प्रोबेबली रिक्वायर इट कि मॉडल इन द सेंस पूरा नया एल्गोरिथम है, सही मॉडल ना, मॉडल नहीं मतलब नया एल्गोरिथम बनाओगे तो लगेगा। पर यूज sklearn ओनली if some other company uses a different language, then they'll also provide a library to use. ठीक है। Any other question? So, Bhaiya, on a concluding note, I will ask you to share some information for the upcoming interns, like last piece of advice. बता दिया है पर मेरा तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही है कि जस्ट स्टार्ट ऑफ वेयर एवर यू आर, ठीक है। अगर चालू नहीं किया तो चालू कर दो, अगर कहीं बीच में हो तो आगे बढ़ो, हाँ मतलब मतलब just स्टार्ट keep द doing। ग्राइंड और कीप हाँ इट रियल, और मतलब कम कम फेंकना, ज़्यादा मत फेंकना। और यार, और एक चीज ये है कि डोंट डोंट बिकम स्लेव्स ऑफ टाइमलाइन, कॉलेज के टाइमलाइंस, कि ये अभी इंटर्न इतना देर चलेगा फिर प्लेसमेंट इतना देर आएगा। जस्ट फॉल इन लव विद डेटा, ठीक है, ट्राई टू फॉल इन तो लव तुम विद लोगों के डेटा, पास अभी लाइक दैट्स व्हाट बहुत विल अच्छा हेल्प। चांस है क्योंकि कॉलेज ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन हो रहा है, तो हाँ, you can बहुत टाइम। really just mute the Google Meet वाला tab and do something else on your laptop। वो ना भी करो तो वही मतलब ना, हम लोग का क्लास तो टू क्लास हॉस्टल जाना वाली पड़ता बकचोदी था। पे जो टाइम जाती है वो नहीं जाती होगी तुम लोगों को। हाँ वो सब नहीं जाती, हाँ तो ये तो है। मतलब तो फिर यही सब है, तुम सपोज पढ़ने करते बैठे हो, कोई आके बोलता रहता है भाई टॉपर है तू, तो पढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं। तो करते रहो, और कहीं पे फंसो तो फिर जस्ट टेक्स्ट मी on WhatsApp, we'll talk। Yeah. That would be my last piece। Okay. Thank you for your time. ओके ठीक है, तो we'll wrap it off। कोई कुछ पूछना चाहे तो, या छोड़ना चाहे तो भी छोड़ दो, फिर हम भी छोड़ देंगे। कुछ पूछना हो तो लिंक्डइन पे पूछ लेना, मतलब नॉट सेइंग व्हाट्सएप का, ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बहुत क्लटर होके रखा है ये। हाँ वो तो मतलब, हाँ व्हाट्सएप पे पूछ लोगे तो
चलेगा मतलब पर रिप्लाई रिप्लाई कर का देंगे, पर एक्सपेक्टेशन बहुत थोड़ा फ्लटर हो चुका है अभी, कोर्सेज के हाँ ग्रुप बन गए पता नहीं बेकार के, और वही वही ये एक्सपेक्टेशंस वही रिप्लाई के थोड़े लो रखना, 1-2 दिन में आ जाएगा डेफिनेटली, बट आएगा। और कभी किस्मत अच्छी रही तो बैठ के चैटिंग ही हो लिंक्डइन पे जाएगी। पूछ लेना, मतलब इवन इफ यू डोंट सेंड अ कनेक्शन रिक्वेस्ट पे भी पूछ सकते हो, कोई बात ठीक है तो फिर थैंक यू। बाय बाय, चलते हैं। बाय।